RH, that is your alkane. Now one of the hydrogen from this is replaced by alkoxy group, that is RO. Alkyl plus oxygen जो है that will be your alkoxy group. Now this alkoxy group is used to replace one of the hydrogen from alkane. Alkane से एक hydrogen आप replace करेंगे. In that case, this will be alkoxy derivative of alkane. Alkoxy derivative of alkane, and that is called as your ether. So what are ethers? Ethers are the alkoxy derivative of alkane obtained by replacing this hydrogen from alkane. अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे बाय व्हाट? अल्कोक्सी ग्रुप. अल्कोक्सी ग्रुप मींस अल्किल प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन. नाउ इन दिस केस ये जो ग्रुप होगा आपका, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ethyl oxygen or functional group that is present in ether. So this oxygen is sp3 hybridized and it carries two lone pairs of electron. It is sp3 hybridized. Now due to presence of these two alkyl group on this oxygen, two alkyl group and two lone pairs, ये जो बॉन्ड एंगल है sp3 में जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इंस्टेड ऑफ दैट विल बिकम्स 110. तो ये जो रिपल्शन है, ये अल्किल ग्रुप का रिपल्शन है, लोन पेयर्स एंड ऑल दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन अ बॉन्ड एंगल दैट इज 110 डिग्री. यहाँ पे ये जो एंगल है वो 109 की जगह पे 110 डिग्री हो गया. सो व्हाट आर द ईथर्स? अल्कोक्सी डेरिवेटिव alkoxy derivatives of alkane obtained by replacing one of the hydrogen from alkane by alkoxy group. जो हाइड्रोजन है अल्केन में, एक हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस करेंगे बाय अल्कोक्सी ग्रुप, एंड इन दैट केस द कंपाउंड फॉर्म विल बी कॉल्ड एज ईथर. बाइवैलेंट ऑक्सीजन जिसका वैलेंसी 2 है, ऐसा बाइवैलेंट जिसका वैलेंसी 2 है, ऐसे बाइवैलेंट ऑक्सीजन इज देयर. And this oxygen carries either same or different so ethereal oxygen is there, it is a bivalent and it carries two same or different alkyl group. They are represented as यहाँ पे दोनों सेम हो गए, यहाँ पे एक अलग हो गया. सो सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स मे बी देयर इन ईथर. जनरल फॉर्मूला फॉर ईथर is CnH2nO. CnH2nO. अब ठीक है.
which is the same as that of alcohol. Now इस पर से हम आगे चलते हैं, पहले निकाल लो इतना. They are the functional isomers of alcohol. देखते क्या होता है. फंक्शनल आइसोमर इस फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 रखते हैं आप, तो दैट विल बी C2H6O, राइट. एंड C2H6O को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो C2H5OH हो सकता, या फिर CH3O CH3 भी हो सकता. मींस सेम फॉर्मूला, different functional group, different compounds, and in that case that will be called as a functional isomers. इससे अल्कोहल रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, C2H6O इस फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 रखा हमने, तो हाइड्रोजन आ जाएगा 6, एंड इन दैट केस C2H6O विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड होगा CH3O CH3, दैट इज ईथर. So this is called as a functional isomerism, that is same general formula, different functional group. Different functional group is there, but formula is same, CnH2n plus 2O. That alcohol and ethers have the same general formula, but they represent different compounds with a different functional group, and in that case that will be called as a functional isomers. सिंपल ईथर की बात करते हैं तो सिमिलर अल्किल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद द बाइवेलेंट ऑक्सीजन. When two similar alkyl groups are bonded with bivalent oxygen, bivalent oxygen carries two similar alkyl group. When two similar alkyl groups are bonded with the bivalent oxygen, then it is called as a simple ether. That will be a simple ether. मिक्स ईथर में क्या करेंगे हम, टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद दैट. एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड कर दिया मैंने. सो दिस विल बी सिंपल ईथर. अब C2H5 भी ले सकते दोनों. When two different alkyl groups are bonded with bivalent oxygen, then it is called as a mixed ether.
So two different alkyl groups are there. एक मिथिल ले लिया मैंने, एक इथिल ले लिया. So in that case, that will be called as a mixed ether. सिद्धेश आ गए. सिद्धेश, तेजस, तुषार. Yes, sir. Okay. Sujal. Himanshu is not there. Sir. Okay. Lavanya, Anuja, Nidhi. Okay. So these students are continuous left side. So these are the simple and mixed ethers. चलते आगे. चला वाइट the upper side. ऊपर वाला मिटा दूं मैं. Yes, sir. Okay, Dinesh. So how they are classified? यदि बोला जाता है आपको तो the ethers are of two types, that is simple ether and mixed ether. How they are classified बोला तो ठीक है. अब इनका IUPAC नाम कैसे रखा जाता है? इन IUPAC ethers are named as, का नाम कैसे रखा जाता है? They are named as alkoxyalkane. They are named as alkoxyalkane, जिसमें स्मॉलर अल्किल ग्रुप या लोअर अल्किल ग्रुप है, जिसमें कम कार्बन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोअर अल्किल ग्रुप. जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं वो हाइयर अल्किल ग्रुप. देखिए यहाँ पे तो ये छोटा है, आपका मिथिल ग्रुप जो है वो छोटा है. सो इट इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मिथॉक्सी. मिथॉक्सी कैसे बनेगा? स्मॉलर अल्किल ग्रुप दो में से एक, दोनों एक जैसे ही है तो ये मिथॉक्सी हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन जब अलग अलग रहेंगे अल्किल ग्रुप तो इन दैट केस लोअर अल्किल ग्रुप गिव्स द नेम ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप, वाइल हाइयर अल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन ज्यादा है, हाइयर अल्किल ग्रुप, हाइयर अल्किल ग्रुप से आपको पेरेंट अल्केन का नाम मिलेगा. जो लोअर अल्किल ग्रुप होगा दैट विल गिव द नेम ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप. मिथिल है तो मिथॉक्सी हो गया, छोटा है तो इथिल छोटा है यहाँ पे, तो इन दैट केस इथॉक्सी विल बी देयर. प्रोपिल छोटा है मतलब उसके बाजू वाला उससे बड़ा होना चाहिए, ज्यादा कार्बन वाला ग्रुप होता है हाइयर अल्किल ग्रुप, कम कार्बन जिसमें होते हैं वो होता है स्मॉलर अल्किल ग्रुप. सो शैल आई राइट दिस मिक्स ईथर? Yes, sir. ओके. ये सिंपल वाला है, इसमें दोनों एक जैसे है. एक का अल्कोक्सी बना दो, एक का अल्केन बना दो. क्या होगा नाम? मिथॉक्सी. इतना ले लिया हमने, मिथॉक्सी बना दिया, और इससे आपको पेरेंट अल्केन का नाम चाहिए तो दैट विल बी मिथाइल. ये सिंपल था. ये मिक्स हो गया. इसमें एक छोटा बड़ा देखना पड़ेगा हमको. छोटा जो है मिथिल है, सो दैट विल बी मिथॉक्सी. और ये जो इथिल ग्रुप है दो कार्बन वाला, इससे आपका पेरेंट अल्केन कौन सा होगा? इथेन. पेरेंट अल्केन जो है दैट विल बी इथेन, एंड इन दैट केस नेम विल बी मिथॉक्सी. मिथॉक्सी इथेन.
गैसियस कंपाउंड है, ये भी गैसियस कंपाउंड है, और रिमेनिंग आर दी प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड जिसको बोलते वो रहेंगे यहां से आगे। यस, व्हाट शुड बी द नेम? इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। इथिल प्लस ऑक्सीजन इथॉक्सी, और इससे पेरेंट अल्केन का नाम इथेन। सो इथॉक्सी इथेन ये छोटा है तो इसको ऑक्सीजन के साथ में जोड़ के लिखना है मिथॉक्सी, और ये 3 कार्बन वाला अल्केन जो होगा वो प्रोपेन होगा। नाउ दिस इज योर कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, सो आई विल राइट मिथॉक्सी 1 प्रोपेन। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 में अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट विल बी मिथॉक्सी methoxy 2 propane. Methoxy 2 propane will be the name because this is 1 2 3 बीच वाले कार्बन में आया है। ये चेन बड़ा कर दिया मैंने, ब्यूटेन का बना दिया, तो यू हैव टू राइट नंबर 1 नंबर 2। तो ये दोनों जो लिखा है मैंने 4 और 5, कंपाउंड नंबर 4 एंड 5, ये दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर देयर, सेम फंक्शनल ग्रुप इज देयर, बट attachment of this alkoxy group is at different position. So in that case such compounds are called as metamers. तो अभी मेटामर्स क्या है ये भी देख लेते हैं। They are called as metamers. Same functional group, same formula, number of carbon, hydrogen, oxygen, all they are the same. Functional group is same, but different alkyl groups are bonded. That is, a functional group carries different alkyl group. बट दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में लगे हुए जो अल्किल ग्रुप है, एक में एन प्रोपिल है, दूसरे में आइसोप्रोपिल लगा दिया, एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज मेटामर्स। ये थोड़ा एरोमेटिक टाइप का हो गया, मिथॉक्सी बेंजीन, that is your anisole. This will be
इथॉक्सी बेंजीन, ये जो है ये इथॉक्सी बेंजीन है और इसको फिनाइटोल बोलते हैं। नीचे के लास्ट 2 कंपाउंड हटा दूं मैं यहां से। यस, लास्ट 2 कंपाउंड हटाना है। यस सर। ओके, these are the volatile compounds means what? Lower boiling point and are inflammable means बहुत आसानी से it catches the fire. It catches fire very easily. So that is called as inflammable. ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट जो ये CO C बॉन्ड है यहाँ पे, इधर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। हम लिखते स्ट्रेट लाइन में है, बट दैट इज नॉट सो, दैट हैज एंगुलर ज्योमेट्री। ये जो मॉलिक्यूल है इसका ज्योमेट्री लीनियर नहीं है, दैट हैज एंगुलर ज्योमेट्री। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस दैट मॉलिक्यूल विल हैव सर्टेन डाइपोल मोमेंट, नो डाउट दैट हैज अ वेरी स्मॉलर वैल्यू, बट इट possesses some dipole moment and hence they are said to be polar molecules. Ethers are polar, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना अल्कोहल हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इधर से जितना होगा उतना इधर से भी रहेगा, बिकॉज एलिमेंट तो चेंज हुआ नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ रिलेटेड होता है। यहाँ जो डिफरेंस है वो नियर अबाउट, इधर CO बॉन्ड है, इधर से CO बॉन्ड है, वो सिर्फ इसलिए जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं है? बिकॉज दैट मॉलिक्यूल इज नॉट अ लीनियर वन, so that molecule possesses some net dipole moment, though it has a very smaller value. They are said to be polar one. Dipole moment of this molecule is 1.18 D. What is that D? Yes, what is mean by D? Capital D लिखा हमने, what is that?
Yes, what is D? D for danger. D for dipole moment. What is that? Shreya says yes, sir. Okay. हाँ श्रेया, D for danger. D for duplicate. D for dipole moment. What is that? D क्या है? कैपिटल D क्या है? D by. Yes, correct. D by, that is a unit of dipole moment. यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट है. So ethers जो है, these are the polar compounds that possesses some dipole moment. Water जो है वो polar compound है, तो यहाँ पे like dissolve like वाला principle follow हो सकता, and in that case that will be soluble in water, but उतना ज्यादा नहीं. To smaller extent. जहां solubility कम होती है वहां miscibility वर्ड यूज होता है. miscibility. अल्कोहल तो वाटर सॉल्युबल है आपका. एन ब्यूटिल अल्कोहल लिया हमने, तो इसका सोलबिलिटी होता है 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाटर लिया आपने, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, मोलर मास सेम होगा. इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें भी है. तो मॉलिक्यूलर मास जो है दोनों का सेम रहेगा. सेम मोलर मास लिया मैंने एन ब्यूटिल अल्कोहल वाला और एक डाइथिल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन. तो यहाँ पे सोलबिलिटी में जो डिफरेंस आया है, यहाँ पे यह है 9 ग्राम per 100 grams of water, whereas this is 7.5, so somewhat less as compared to alcohol. So this is all about the solubility, dipole moment, boiling point and physical state. जो liquid ethers होते हैं, they have the pleasant smell.
that is a pleasant odor. Yes, all these things are over. Preparations of ethers. पहला जो मेथड है दैट इज अ कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस. Intermolecular dehydration of alcohol. Intermolecular dehydration of alcohol. या नीचे वाला यदि हो जाए तो बता दो. Okay. So this is the method in which alcohol is heated with concentrated sulfuric acid. अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफी कंट्रोल में रखना पड़ेगा एंड दैट इज अप टू 413 केल्विन. थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इन दिस केस तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन. तो यहाँ पे जब तक रिएक्शन मिक्सचर में आपका अल्कोहल है तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा और अल्कोहल से इथर बनते रहेगा. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस. कंटिन्यूअस क्यों बोला? जब तक का आपके रिएक्शन मिक्सचर में इथिल अल्कोहल या फिर अल्कोहल है द प्रोसेस विल टेक्स प्लेस एंड इथर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इथर तब तक बनता रहेगा जब तक आपके कंटेनर में अल्कोहल बचा हुआ है. तो एक अल्कोहल दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल में से आप अल्कोहल के वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं. सो इन दिस वे ईथर विल बी ऑब्टेन्ड. So you can take that ethanol, then it is heated with concentrated sulfuric acid at ये टेम्परेचर पे. टेम्परेचर यदि बढ़ गया 443 केल्विन यदि हो गया तो अल्कीन विल बी द प्रोडक्ट.
ये इसके साथ में जुड़े हुए शॉर्ट कमिंग्स भी है, लिमिटेशंस है। पहली बात तो इसमें सिर्फ सिंपल ईथर बनेगा, दूसरा टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ जाता है 413 केल्विन से, इन दैट केस अल्कीन विल बी द प्रोडक्ट, ईथर नहीं मिलेगा। So you can take ethanol C2H5, C2H5 इधर से और इधर से, then you will get C2H5O C2H5, simple ether can be obtained, ethoxyethane। एक एग्जांपल देना है इसके अंदर, तो यू कैन हैव दैट C2H5 यहाँ पे और यहाँ पे एक C2H5, तो ये दो आर रिप्लेस बाय C2H5 एंड इन दैट केस यू विल गेट ethoxyethane, दैट इज अ सिंपल ईथर। So is it over upper part? So in this way, ethoxyethane can be obtained by this method. Only simple ethers can be obtained. Okay, is it over? सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे आप, वन ऑफ द रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट खास तौर से प्राइमरी अल्किल हैलाइड। वहां पे हमने अल्किल हैलाइड में रिएक्शन भी लिखा है, विलियमसन सिंथेसिस, जहां पे सोडियम अल्कोक्साइड किसी भी टाइप में हो सकता है, लेकिन अल्किल हैलाइड जो वो हमको प्राइमरी रखना है, एंड इन दैट केस दे आर हीटेड टुगेदर टू गिव ईथर। So by this method you can get either simple or mixed, दोनों टाइप के ईथर can be obtained by this method. They are heated together. This is sodium alkoxide. This is your alkyl halide. ऑन हीटिंग टुगेदर इतना पार्ट निकाल देंगे आप। ये सेम और डिफरेंट ले सकते हैं आप यहाँ पे, बोथ ये जो आर और आर डैश है सेम भी हो सकते, अलग भी हो सकते, एंड इन दैट केस
you get either simple or mix ether. दोनों टाइप की ईथर आप इससे बना सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना है कि ये प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, बिकॉज सेकेंडरी और टर्शरी का इसकी वजह से डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो जाएगा, अल्कीन विल बी द प्रोडक्ट अगेन। मतलब बनाना को कुछ और है, ईथर बनाना चाहते हैं हम एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कीन, तो ये ऐसा बहुत बार होता है ईथर्स में। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अल्कीन, यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड और ये अल्किल हैलाइड यदि सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया आपने तो सोडियम प्लस अल्कोहल कॉजेस डिहाइड्रोहेलोजनेशन एंड अल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। वो प्रॉब्लम है इसके अंदर, ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, बिकॉज सेकेंडरी या टर्शरी अल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो अल्कीन्स विल बी द प्रोडक्ट। इतना ले लिया आपने, तो दिस विल बी NaBr, that is a methoxyethane. आप सोडियम फिनॉक्साइड लेके भी चल सकते हैं, लेकिन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते आप, बिकॉज दैट बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग, है ना। हेलोअरीन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो यू कांट यूज द एरिल हैलाइड, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज अ सोडियम फिनॉक्साइड। ब्रोमोमिथेन ले लिया हमने, इट गिव्स अनिसोल। इतना पार्ट निकाल देते हैं आप, दैट केस यू विल गेट methoxybenzene known as anisole. So this is your second method of preparation. ये सोडियम फिनॉक्साइड है हमारा, इसको तो पहचानते हैं आप, ब्रोमोमिथेन मिथिल ब्रोमाइड। सो दिस इज व्हाट मिथॉक्सीबेंजीन और यू कैन से अनिसोल। देखिए एनिलीन के साथ मिक्स मत करना, इसको एनिलीन के साथ में मिक्स नहीं करना है पूर्वा। So shall I write this one? Okay.
मतलब एक अल्किल ग्रुप जो है वो आपका फिक्स रहेगा, मिथिल। कैटलिस्ट है फ्लोरोहाइड्रोबोराइड, फ्लोरोहाइड्रोबोराइड या फिर हाइड्रोफ्लोरोबोराइड, HBF4 ले लो आप। देन इन दैट केस ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का वो CH2 में ऐड करना है, सो दैट ROCH3 बनेगा प्लस नाइट्रोजन इज सेट फ्री। तो यहाँ पे आपका जो इथर बनेगा उसमें एक अल्किल ग्रुप परमानेंटली मिथिल रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिथिल इथर। Is it over? Yes, sir. Mm-hmm. कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं हम, हमारा फेवरेट। दूसरा आपका डायजोमीथेन CH2N2। HBF4 ले लिया हमने कैटलिस्ट के तौर पे। अल्कोहल का OH वाला H CH2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C2H5OCH3 प्लस N2। So this is what methoxyethane. Methoxyethane. So this is all about the preparations of ethers. तीन अलग अलग मेथड्स हमने यूज किया जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो ईथर था। नेक्स्ट चीज है इसका reactions of ethers. ये नीचे वाला हिस्सा मिटा दूं मैं, ये पार्ट मिटाना है नीचे वाला। Yes, sir. ओके ईथर्स पे इन चीजों का कोई एक्शन नहीं होता, बट they are inert to the action of bases, acids or the oxidizing agent. But
ethers dissolve in cold and concentrated sulfuric acid oxonium ion. जो ऑक्सीजन है आपका दैट इज अटैक्ड बाय द प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. So this will explain the Levy's basic nature, Levy's acid या फिर लॉरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट के हिसाब से that will be the acid proton acceptor. So this is what oxonium ion. फॉर्मेशन ऑफ peroxide भी बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन बाय एयर भी बोल सकते. तो ये अनडिजायरेबल है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा होना चाहिए, बट ये हो जाता है. और जब ये पेरोक्साइड बन जाता है और थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है तो इन दैट केस ये जो पेरोक्साइड्स है वो वायलेंटली डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब एक्सप्लोजन टाइप के फिनोमिना जो है वो यहाँ पे हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड. रखे रखे बॉटल जो है आपका ईथर वाला वो फूट सकता है ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन बाय एयर. थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो वहां पे ऑक्सीडेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इन दैट के जो पेरोक्साइड बन रहा है वो एक्सप्लोड हो जाएगा. तो दैट इज अनडिजायरेबल, अनएक्सपेक्टेड चीजें है ये. तो ईथर को रखना है तो बड़ा संभाल के रखना पड़ता है. रिएक्शन तो काफी स्लो है बट पेरोक्साइड बन रहा है, मतलब बन रहा है. वो छोटा हो या बड़ा हो, पेरोक्साइड कम हो या ज्यादा हो, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज होगा.
See now the difference. यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमने, यहां लगा दिया और 2 ऑक्सीजन कार्बन पे ऐड हो गए, एंड दिस इज योर पेरोक्साइड. They get hydrolyzed by heating with dilute sulfuric acid. Undergo hydrolysis to give alcohol. तो ईथर से on heating with dilute sulfuric acid undergo hydrolysis to give alcohol. जिस चीज से बनाए वही चीज आपको रिप्रोड्यूस करके दे सकता है by the action of hot and dilute sulfuric acid. Either alcohol or phenol will be the products of this reaction. So shall I wipe this peroxide? Peroxide को मैं हटा दूं यहां से. लेफ्ट वालों के साथ में RO with H, ROH, R dash with OH gives R dash OH. So that is the decomposition of ether by hot and dilute sulfuric acid. It gives alkyl chloride
on heating with PCl5. तो यहाँ पे एक इसमें Cl लगेगा, एक इसमें लगेगा, बचे 3, 5 में से 2 तो एक इसमें चला गया, बचे 3, तो POCl3 will be the another product. So in this way, alkyl chlorides can be obtained by the action of PCl5 on ether. So ये नीचे वाली 2 लाइन मिटा दूं मैं. जो अल्कोहल बनेगा मिक्स ईथर में वो हाइयर अल्किल ग्रुप का रहेगा. ऊपर वाला पार्ट हटा दूं मैं, 2 लाइन ऊपर की 2 लाइन हटा दूं मैं. ओके, थैंक यू. तो अभी यहाँ पे हम सिंपल हो चाहे मिक्स हो, कुछ भी ले लिया आपने, तो एक अल्किल ग्रुप में I लग जाएगा, वो बन जाएगा RI, और दूसरे में RO बचा है आपका ये, तो अल्कोहल दे देंगे आपको. ऑक्सीजन जो है वो हाइयर अल्किल ग्रुप के साथ में जाएगा, तो हाइड्रोजन का अटैक भी वहीं पे होगा. C2H5OH. So shall I write this action of PCl5? यस, एक्शन ऑफ PCl5 हटा दूं मैं यहां से, 4 नंबर जो दिख रहा है आपको, एक्शन ऑफ PCl5 हटा दूं.
हॉट कंडीशन में जाएंगे तो आपको दोनों अल्किल हैलाइड ही मिलेंगे, अल्किल आयोडाइड ही मिलेंगे। मतलब दोनों अल्किल ग्रुप है, दोनों अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अलग हो जाएंगे, दोनों में एक एक आई ऐड हो जाएगा, आर आई और आर डैश आई। तो यहां पे दोनों अल्किल ग्रुप का आपको अल्किल आयोडाइड मिलेगा। यहां पे जो लिंक है वो है इस तरह से, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। हॉट कंडीशन बोला है 373 केल्विन, 2 आई ले लिया, एक इसमें देना है, एक इसमें देना है, बचे 2 एच, ऑक्सीजन के साथ में भगा देंगे आप, ये 2 एच और ये ऑक्सीजन H2O हो गया। अब आपके पास में रह गया है आर आई प्लस आर डैश आई, सेम और डिफरेंट हो सकते, प्लस H2O। सो हॉट कंडीशन में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इधर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसका भी ब्रेकिंग हो रहा है, इधर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। सो इन दैट केस द अल्किल आयोडाइड्स विल बी द प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल ऐड करेंगे एंड देन वी विल टेक द रेस्ट। ये 5 नंबर हटा दूं मैं यहां से, ये एक्शन ऑफ कोल्ड है। ओके, दोनों कोल्ड में सिर्फ एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और 2 इथिल आयोडाइड मिलेंगे आपको इसमें, 2 मोल्स ऑफ इथिल आयोडाइड विल बी देयर। एक C2H5I इधर से मिलेगा, दूसरा इधर से मिलेगा, बचे 2 H और ये ऑक्सीजन, तो इसको साथ में लेके जाना है और वाटर बना देना है। यहाँ पे हम एक आधा एरोमेटिक वाला एग्जांपल लेंगे। ओके, इसको रहने देंगे, अभी और एक आधा करना है इसमें। यहाँ दो इट इज अ हॉट कंडीशन, only this bond will break. This is anisole CH3 methoxybenzene anisole, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा और इधर में आपका हाइड्रोजन पिकअप करेंगे आप इसके साथ में। सो फिनॉल विल बी द प्रोडक्ट। अनिसोल विद HI कर रहे हैं आप, तो इन दैट केस एक टिपिकलनेस आ गया, यहाँ पे फिनॉल बन गया है। Then 3 more reactions are left and that are related to aromatic group. So we will take tomorrow. Okay, आराम से करो।
Okay, Vedant, shall I close the meet? वेदांत बंद करना है. ओके, प्राजक्ता, सुजल. यस अरे सर। ऐसे मुझे बहुत भूख लग गई सर, क्या आप भी ना परेशान करते हैं भैया. मैंने 8 से 9 को हटा के 7:15 से 8:30 तो किया है सिर्फ, है ना. लोगों को भूख लग जाती, लोग भाग जाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा बिफोर कर दिया है. ओके, थैंक यू. चलो मीट क्लोज करें.